You can start at 5 o'clock. Okay, okay, sir. 2 minutes more then. Yeah. Before 2 minutes, then we will start. Okay, sir. I hope I am audible to all. Yeah, you are audible, ma'am. Okay, sir. Thank you. Very good evening to all. I'll just brief you what to expect in these 4 days that I'm going to take the classes. I'll be taking BES 061. I hope you all have the books with you. Sorry for that. Am I connected? Yes, ma'am. Let's start You are the. audible, ma'am. Okay, thank you so much. We are going to understand adolescence today. We all have been dealing with adolescence, so we don't know actually how to change our systems when or the way we handle them, how to change that when it doesn't work with few adolescents. So about that we have to understand what is the developmental stage that they go through. And in connection with that we'll have 3 blocks.
Today we are going to cover development during adolescence, and if possible, we'll see what all we can finish today. Who is an adolescent? We all know there is no time actually for question answer or interaction. I'm so sorry about that, but if you have any question, I think you can put your mic on and ask questions. Is that okay? So we are going to do this. We'll do it. How they go through when an adolescent is also a child. You must have seen, according to their own benefit, I mean, they are also trying to be a kid sometimes, and sometimes they want to be treated as an adult. So they are also struggling to find their own identity. They must be wondering, when I'm a small kid, they don't care about them. They want me to behave like an adult. And when I'm an adult, so their identity also switches between a child and an adult. So this is the very crucial stage when parents and teachers also find it very difficult. And I'm sure, since all these teachers who have joined today's class are house masters or house mistresses, I mean house mothers, what do you call them? House mothers, right? So how difficult it is sometimes to treat them correctly, or to change their attitude and behavior when it is not appropriate. How difficult it is sometimes. Sometimes it is easy, sometimes it is not. So we'll see what is the problem they are all facing. We are trying to understand them, but before that we have to understand our own behavior, because unless we understand ourselves, we cannot really understand what they are going through, because there is a change in the system, there is a change in the education system, there is a change in the current age. The era they are belonging to is not our era that we have grown up when we were adolescents. So there will be definitely a big change you will observe when you compare your childhood and adolescence phase with today's adolescence. But the physical development would be the same. They go through physical, emotional, social developments and moral developments. So few developmental patterns which are basic will be the same. Only when they are interacting with their outside environment, or the as we have seen, I don't know if you're familiar with Bronfenbrenner's developmental patterns, or the micro mesosystem, exosystem, all that, how we interact first with the parents, then family members, and then the schools, or the religious community come into contact, then we become members of different clubs. So that way our social development also happens. So there is a fixed physical development no one can escape, even if their other developments will be varying depending on the time period that they belong to. Physical development will discuss, and what facilitates physical development, because they are in a residential school. The physical development is pretty much observable by the teachers that they are teaching them. So the growth that happens during this phase is very sudden sometimes. You must have seen some youngsters suddenly gaining in height, और वैसे बोलने का तरीका था, अरे इतना बड़ा हो गया इतना जल्दी, right? So this is called growth spurt. So height, weight, and their bodily changes, the organs, they grow suddenly. They suddenly become very tall, they gain weight, they become more matured also during this time. So they are trying to behave in a mature way at least. So hormonal changes occur, which makes this happen, the development. I hope I'm audible. When I get disconnected, please let me know. So there are hormonal changes which the gonadotropic hormone, it is called
NRH. It is produced by the hypothalamus. Hypothalamus is the center for emotions, which we all know. But during development also, it stimulates the pituitary gland to secrete two hormones, which is LH and FSH, luteinizing hormone and follicle stimulating hormone. I'll just touch upon the main topics, and I think there will be no time to get into the tiny details that the book has, but I expect the teachers or the students who are attending this class to go through the book bit by bit, so that they can be familiar with all that. I'll just introduce the basic major points that we have to focus upon, but I'm repeatedly saying you can ask questions so that we'll get more time to discuss which you find difficult to understand. And how the sexual characteristics happen. These are the primary, secondary sexual characteristics that happen during adolescence. And they have also, as this is the age of puberty, girls achieve their menarche. They go through menarche. Boys also, they grow their mustache. They grow their mustache, beard, and they absorb bodily hair. So imagine an adolescent or a small kid who was treated as a small child suddenly being treated as an adult or a grown up. So they are also very confused about the bodily changes that their body is going through. Then there are sexual characteristics also that they are not sure where to ask and who to ask. So they all have this confused state that they are going through these stages, and the hormonal changes also will make them behave aggressively. The sudden rush of hormones they feel, that is also responsible for the change in behavior. The development of brain also, if we observe the amygdala, which is the center of emotions, that also goes through many changes as per the hormonal secretion. For the bodily changes that are happening, our body needs energy to function. So when an adolescent is going through so many changes and they become very active, because the rush of energy that they are facing, that needs to be released. So for that they have to eat properly. You must have seen their digestive system works very well. They feel hungry most of the time. Is there any question written? I'm so sorry, I cannot see the questions here. If anyone is typing the questions, I would request, if it is possible, please ask the questions rather. So when they are trying to replenish their energy through proper eating habits, that is a difficult task for the parents and teachers also, because they have to take a balanced diet, take a balanced food which contains protein, carbohydrate, fats, vitamins, and all the minerals. It is very difficult to make them eat, and they will follow their own wishes only. They want to eat as the options are also many. We didn't have Zomato or Swiggy in our time, but they have the option of ordering their food. So that also, as parents or teachers would agree, it spoils them. They don't want to have hostel food. They will go outside and have their food. I was taking the class in earlier last time. So they all agreed that the students sometimes break the rule and go out just to eat. रात को दीवार फांद के गए क्योंकि ढाबे पे खाना है. So that is also a problem with their deviant behavior that we would call. We'll get into the details of delinquent behavior, deviant behavior. So to have a balanced food, eating healthy is very important during this stage. So for that, they have to take balanced food, have fresh fruits. They have to avoid sugary or packaged food. They have to drink enough water. And mindfulness in eating. So they have to be very mindful what they are putting into their mouth and which is going to nourish their body. So for that, they have to be mindful about what they are eating.
and eating has to be a conscious decision by these adolescents. Then, as we are discussing the physical development, they have to go through the sleep pattern also. It has to be set properly. But I have been getting clients also, those whose parents are complaining that they don't sleep at all. These kids don't sleep at night, they sleep at midnight, or sometimes they just have they talk to their friends or peer group. They have their own discussions. They say that we are discussing, we are preparing for the exam, and it continues the whole night, which is a big problem for the teachers to handle, and sometimes the parents also is very difficult. So sleep is very important, as during sleep it repairs, our body repairs, maintains and rejuvenates the internal organs. We all know how important sleep is. A person can go without food for a few days but not without sleep. When you are deprived of sleep, your mind functions in a very weird manner. We all have faced that problem also. When we go, for some reason or the other, if we don't get sleep, then how difficult it is to function normally. So that is also important during this developmental stage when we are discussing about the physical development of adolescents. Then how to facilitate a good night's sleep? So for that, when they are not able to cope up anymore, so their sleep pattern has to be regulated through proper sleep routine. Sleep hygiene they are calling it today, these days. So they must go to sleep and wake up at the same time, and they should do some exercise. These days these kids have to be forced. I'm saying kids, sometimes I'm saying children, sometimes I'm saying adolescent, because legally below 18 means they are to be treated as children in our legal terms. And adolescent is, the age also varies. It is not a fixed age that they are going to attain puberty. All of them at the age of exact age they are going to attain puberty. So interchangeably we are using the words children, kid, or adolescent, but it is the same. Those who belong to this age group, starting from 9 to 18. Pre-adolescence, adolescence, and late adolescence. There are three phases again. So we have to set a sleep routine for them, where they have to limit their screen time also before going to bed. The blue light that is interfering with that comes from the mobile or the computer has to be reduced to the minimum. They have to prepare the sleep environment. All that has to be maintained properly so that they can get a proper sleep and their body can repair itself. The internal organs also need to be functioning properly, because that is what which is going to help them for further development. And exercising also, that has to be done by these adolescents, because these days they get so stuck with these games, video games, and phone is so much in use or misuse, we can say. They have to be set into a pattern where they are doing some physical exercise. All the body parts will be functioning properly when the body moves. The internal organs need some exercise also, or some oxygen to function properly. So they have to also exercise well. So what the school or teachers can do is they can make it compulsory for students to participate in games or sports, and as per their ability and efficiency they can choose, of course, but they have to be encouraged to participate in physical exercises. And exercise including yoga and sports should be a fun activity. Even if it is forced, they should enjoy it. So we have to find different ways to make them engaged in such physical activities, yoga and some aerobics, or there are many ways of staying active. So that was all about physical development and how to sleep properly and how to maintain the body, how to eat properly. Then comes the cognitive development. What is cognitive? Cognition means higher mental functioning that we are engaged in. So when we talk about cognitive development, there are two theories we'll be focusing upon. Am I audible?
I hope I'm connected. So, for this cognitive development, I am going to discuss two theories. One is Piaget's theory of cognitive development. Piaget's theory is a process of Jean Piaget, who has given this theory of cognitive development. It has two components again. One is assimilation and accommodation. Assimilation means we are going to gather all the information from our environment, from other people, from those other significant people in our, around him and around us. Excuse me, ma'am. Yes. प्लीज मैं हिंदी अध्यापक हूँ, हिंदी शिक्षक हूँ, और टोटल जो इंग्लिश मीडियम पे क्लास चल रहा है उसकी वजह से मुझे सुनने में और समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है. प्लीज हिंदी इंग्लिश मिक्स आप अगर शुरू करेंगे तो थोड़ा सा मेरे लिए इजी होगा और मैं चीजों को बेहतर ढंग से समझ पाऊंगा. ओके ओके, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट. हिंदी में भी रिपीट करूंगी. कितने जनों को मतलब अभी तक आई एम सो सॉरी एंड थैंक यू फॉर अलर्टिंग मी अबाउट दैट. थैंक यू. मुझे बताने के लिए शुक्रिया. जो कॉग्निटिव हिंदी में थोड़ी मैडम, हिंदी में थोड़ा आसान रहता है ना मैडम हम लोगों के लिए. ठीक ठीक. जो जो टर्म्स हैं जो बुक में आप लोग पढ़ोगे ना, वो जैसे फॉर एग्जांपल कॉग्निटिव डेवलपमेंट है तो उसका हिंदी तो नहीं है, उतना चलेगा तो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके देन. कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब यानी कि हमारा हायर मेंटल फंक्शनिंग, जैसे लैंग्वेज हो गया, थिंकिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया. फॉर ऑल दीज थिंग्स वी डेवलप ड्यूरिंग द एडोलेसेंट स्टेज पे. ये इसका ग्रोथ होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का. सो इसमें दो प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन एंड प्रोसेस ऑफ एकोमोडेशन. विच ये सब क्या करते हैं, ये मेंटल स्ट्रक्चर और स्कीमा जो बच्चों में होता है. स्कीमा मतलब हाउ कैन यू एक्सप्लेन इट. स्कीमा इज मेंटल पिक्चर्स दैट यू फॉर्म. अगर आपको कोई प्रॉब्लम दे दिया जाए तो आप क्या करने को चाहते हो, पहले ऐसा वाला कुछ किया है कि नहीं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाया है कि नहीं. अगर इसका जैसा प्रॉब्लम को हैंडल किया है तो उसका सॉल्यूशन ठीक था कि गलत था. अगर गलत था तो यू विल ट्राई टू मेक सम चेंजेस इन दैट डिसीजन मेकिंग दैट यू हैड डन इन द पास्ट, और उसमें चेंजेस करके फिर इस बार देखोगे नहीं ऐसे तो काम नहीं करता है, ऐसे करके देखते हैं. सो एकोमोडेशन. assimilate means you are assimilating ideas and the information that you are getting. वो assimilate करके फिर उनको accommodate करते हो in your cognitive functioning or the mental structure that you have for particular problems. So इसमें cognitive development में फिर एक concept है egocentrism in the adolescents thinking patterns. Egocentrism means they focus on themselves. अपने आप को बहुत ही महत्वपूर्ण समझते हैं. जो बोलते हैं कोई सुने नहीं तो गुस्सा आ जाता है उनको, मैं बोलता हूँ तो क्यों नहीं सुनते हो आप, पेरेंट्स को डांटते हैं. और जैसे एडोलेसेंट को हो गया, जैसे हाउ टू से इट, समटाइम्स आई एम एट लॉस ऑफ वर्ड्स व्हेन आई हैव टू थिंक इन हिंदी आल्सो. मुझे क्षमा करना उसके लिए. इगोसेंट्रिज्म का मतलब जैसे अपने आप पे ऑल सारा एम्फोसिस देना फॉर द रिस्क बिहेवियर. इसी टाइम पे एक्चुअली दे ये एडोलेसेंट्स जो है इतना कॉन्फिडेंट होते हैं कि दे एक्चुअली टेक द रिस्की वे.
जैसे मोटरसाइकिल चला के जाते हैं, रास्ते पे देखा होगा बच्चे ऐसे आजकल क्यों चलाते हैं, हम डांटते हैं देख के. So risk behavior is also engaging in other activities which is not safe for them. ड्रग यूज हो गया, सब्सटेंस अब्यूज हो गया. आजकल तो आप लोग क्योंकि आप लोग तो इन बच्चों को हैंडल करते हो, आपको मालूम होगा ड्रग्स भी कहाँ कहाँ मिलते हैं, इन बच्चों को मालूम है. आई वॉज हैविंग अ डिस्कशन विद द पेरेंट्स व्हेन दे हैड कम. सो वो बोले कि अरे पान के दुकान पे तो मिलता है ड्रग्स. इट्स सो कॉमन दिस डेज. उनके एरिया में एक पान का दुकान है, उसका एक कोई कोड लैंग्वेज है. सो दिस किड्स एक्चुअली, बच्चों को मालूम है कि क्या बोलने से वो मिलेगा. उसको और एक क्या कुछ कुछ नाम होता है, तो उसको बोलते हैं उड़िया में नोड़िया है, नड़िया बोल के लेते हैं. कुछ कुछ मतलब उनका लैंग्वेज वैसे इस टाइप का होता है जो दुकानदार ही समझे. एंड समटाइम्स दिस एडोलेसेंट्स फील दैट नोबडी कैन अंडरस्टैंड देम, इसीलिए उनको गुस्सा भी आता है बहुत. So there is another theory which is talking about the cognitive development. Cognitive development के बारे में जब बात किया जाए तो एक तो है ये पियाजे का थ्योरी और एक है विगोत्स्की का थ्योरी. ये जो विगोत्स्की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उनका थ्योरी प्रपोज करता है सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंस इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट. विगोत्स्की का सोशियो कल्चरल थ्योरी बोलता है कि बच्चों का जो बिलीफ पैटर्न है, जो उनका बिहेवियर है, उनका वैल्यू सिस्टम है, कॉग्निटिव एक्टिविटीज दे आर एंगेज्ड इन, इज ऑल इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोसाइटी दे आर लिविंग इन और फ्रॉम द कल्चर. जो सोशल इन्फ्लुएंस होता है और कल्चरल इन्फ्लुएंस होता है वो बहुत होता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉग्निटिव डेवलपमेंट. सो इसमें फिर दो टर्म्स उन्होंने यूज किया है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD बोलते हैं उसको, और स्कैफोल्डिंग. बोथ रिलेटेड टर्म्स है. स्कैफोल्डिंग मीन्स अगर बच्चा कुछ करना चाहता है तो वो एक्सपर्ट के साथ बैठ के उसको समझा जाए तो ये सीखता जाता है स्टेप बाय स्टेप जैसे उसको बोलने से. जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलता है कि there is a maximum ability for each child. So no matter how much you try, they cannot exceed that. So zone of proximal development and scaffolding, these two concepts are given by Vygotsky. Am I clear? Yes, madam. Okay. Clear है, clear है. Thank you. मुझे भी हिंदी में बोलने में थोड़ा सा तकलीफ होता है, तो बता दीजिए अगर गलत कुछ हुआ तो बोलते बोलते. ZPD refers to the potential area of development. किसका कितना कैपेसिटी है. अगर बच्चे का मतलब कैपेसिटी ही नहीं है, उसको बोलेंगे हम कि सबके बच्चे तो फर्स्ट नहीं होंगे, लेकिन पेरेंट्स सबके घर पे डांटते रहते हैं कि तुम क्यों रैंक नहीं रखे. तो ये तो नामुमकिन है कि सबको एक ही जैसा बुद्धि मिले और सब 99% ले आए. सो दैट इज व्हाट जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज. ओके. एंड देन अमेगडाला जो हम बोलते हैं लर्निंग एंड इंटेलिजेंस, वो इंटेलिजेंस इज ऑल्सो मेजरेबल. एक होता है मेजरेबल कंपोनेंट जो IQ क्वोशेंट बोलते हैं, इंटेलिजेंस क्वोशेंट. So IQ is measurable and IQ theories are given by many psychologists. जैसे theory of multiple intelligence गार्डनर का हो गया. तो उन्होंने क्या कहा कि there are many areas where you can see whether the person or the child or the adolescent that we are talking about is good or not. So उनका 8 areas he has talked about. और वन मोर उनका है जो एक है बॉडी काइनेस्थेटिक, जो रिलेटेड टू योर टैक्टाइल इमोशन. टच करके
जैसे पता चलता है, बॉडी स्मार्ट बोलते हैं उनको, जो उसमें ज्यादा उनको एनर्जी है। उसका पूरा हिंदी हमको नहीं मालूम, बट बॉडीली काइनेस्थेटिक इज वन एस्पेक्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। जब आपका टेस्ट होगा तो वो आप बॉडीली काइनेस्थेटिक ही लिखेंगे। इफ यू वांट टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट ट्रांसलेशन, you can please translate or enlighten me with the exact translation. और एक होता है people smart, so music smart, people smart, picture smart, जो visual special। अच्छा, इसका visual audio जो हम यूज करते हैं, ऑडियो विजुअल, उसमें कभी कभी देखा है कि जो ये गेम्स होते हैं, किसी किसी बच्चे को बहुत अच्छे से, मतलब वो उसमें तो अच्छा करते हैं, ऑडियो विजुअल कैपेसिटी उनका अच्छा है, बोलते हैं ना, ये लगा के हेडफोन्स लगा के खेलते रहते हैं। तो दैट इज ऑल्सो वन एस्पेक्ट ऑफ योर इंटेलिजेंस ओनली, विजुअल स्पेशल। सो गाड़ी पार्क किया तो थोड़ा सा ही जगह है, उसमें कैसे स्पेस का उसका अंदाजा करके उसमें कैसे पार्क करते हैं, दैट इज ऑल्सो वन एस्पेक्ट ऑफ intelligence also. And logical mathematical is one aspect again out of these multiple intelligence, multiple theories of multiple intelligence जो हॉवर्ड गार्डनर का है, उसमें 9 कंपोनेंट्स का दिया हुआ है। क्या क्या है उसमें? एक है म्यूजिकल, एक है विजुअल स्पेशल, एक है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल मीन्स बिटवीन पर्सन्स, बाकी लोगों से बात करना, कैसे उनका इमोशन समझना, ये सब इंटरपर्सनल है। इंट्रापर्सनल मीन्स खुद को कितना समझता है कोई आदमी। इंटरपर्सनल एक है एस्पेक्ट इन 9 कंपोनेंट्स में से, और एक है इंट्रापर्सनल। एंड देयर इज आल्सो वर्बल और लिंग्विस्टिक एबिलिटी, लैंग्वेज में अच्छा होना, लॉजिकल, मैथमेटिकल, इंस्ट्रूमेंटल, ये सब है। म्यूजिक स्मार्ट बोलते हैं जिनको म्यूजिकल एबिलिटी ज़्यादा होता है। कोई कोई पकड़ लेते हैं विदाउट लर्निंग ऑल्सो एनी इंस्ट्रूमेंट, वो बजाते हैं तो बजा पाते हैं। सो दे आर इंटेलिजेंट इनफ टू पिक अप द ट्यून्स ऑफ सॉन्ग और म्यूजिक। सो ये हो गया गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, विच ही सेज दैट एक बच्चा सिर्फ एकेडमिकली अच्छा नहीं करे तो भी चलेगा, बट इसका बाकी वेज भी है देखने के लिए, एक्चुअली दम है। और जैसे नाम दे देते हैं ना स्कूल में, ये डम है, ये कर नहीं पाता है, पेरेंट्स लेके आ जाते हैं। तो ये सब भी कंसिडर करना चाहिए बिफोर डिक्लेयरिंग एनी चाइल्ड बिलो एवरेज IQ। Then thinking, when we are talking about critical thinking or thinking for problem solving, there is also one aspect which these youngsters are good at, that is creativity. देखा है आपने कभी कितने क्रिएटिव होते हैं बच्चे? क्रिएटिविटी इज समथिंग which talks about innovative ways of doing things and flexibility in the use of the created idea, that is called creativity. Thinking and problem solving, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जैसे उनका स्टेटमेंट कैसे पकड़ते हैं वो, I hope I can use few sentences in English sometimes. बीच बीच में बोले तो चलेगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. नहीं तो as teachers also, teachers का भी deficiency होता है, so my deficiency is continuing completely in Hindi. No, तो mix जैसे चलेगा मैम। ठीक है, नहीं बीच बीच में तो बोलती हूँ। Okay. ठीक। So here again there is one point we can see, like we all are not good in everything. We have our deficiencies, we have our problems, so we have to understand our adolescents in the same manner.
We cannot expect them to know everything. We have to help them and understand them and put our effort in trying to put ourselves in their position and understand in their place actually. Okay. So before that we are trying to, अभी आप बोलोगे कि हम तो परेशान है बच्चों को संभाल संभाल के, अभी हमको फिर से समझा जा रहा है कि एडोलेसेंट को कैसे समझे. हमको कौन समझेगा फिर टीचर के हिसाब से, है ना? कौन कौन राजी होता है इस सेंटेंस में? हाँ, लगभग सभी का प्रॉब्लम है मैडम. ये सबका प्रॉब्लम है. बच्चों को कितना और समझे, वो लोग भी तो समझे हमको, है ना? क्योंकि तो हम अपने समझ पाए, हम उसके बाद बच्चों का देखेंगे, ये भी होता है. सो दिस इज जस्ट टू मेक इट इजियर फॉर यू so that you can think the way these youngsters think, and we can again reframe our thinking patterns accordingly, because उनके पास जो अभी जो एज को बिलोंग करते हैं उसमें उनको कितना, मतलब अगर खाने में प्रॉब्लम है तो क्यों ऐसे करते हैं, सोने में प्रॉब्लम है क्यों करते हैं, the why aspect of their behavior will be able to understand in a better manner. Okay, so there is again there is a developmental problem in adolescence because of this, क्योंकि वो लोग इतने हार्मोनल चेंजेस के थ्रू जाते हैं, क्योंकि उनको इतना ट्रस्ट किया नहीं जाता है. पेरेंट्स हमको ट्रस्ट नहीं करते हैं. मोस्ट ऑफ द एडोलेसेंट्स कंप्लेन दैट ओनली. हमको तो जो भी बोलो तो उनको गलत लगता है, नहीं तो पेरेंट्स बोलते हैं कि हम जो बोले तो बच्चों को गलत लगता है. रेसिडेंशियल सिस्टम में भी वही है. दे बिकम वेरी रेबेलियस समटाइम्स. टीचर हमको ही क्यों डांटे, उस दूसरे ग्रुप को क्यों नहीं डांटे, ऐसे होता है ना. ये सुन लेते हैं आप सबकी डांट, या आप अगर उनको कुछ समझाने को चाहे तो. अगर कोई प्रॉब्लम है, झगड़ा हो गया बच्चों में, सो उसमें क्या होता है, देयर आर some issues that these youngsters are going through, these adolescents are going through. So we will try to understand what are the issues that they are facing. उनको क्या क्या दिक्कत होती है और क्या क्या हो सकती है इस एज पे, because they belong to this category. वो तो बड़े हो जाएं तो हम तो बदमाशी ये लोग जैसे करते हैं वो नहीं करेंगे. So it is quite natural to expect adolescents to be doing all these mischievous activities, and how to reduce that. उसको कम कैसे किया जाए, उनका जो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है और इश्यूज है उसको कैसे कम किया जाए. वेरी गुड इवनिंग. सो उसको कैसे कम किया जाए, क्योंकि हम और एक हमने देखा है कि हम लोग कंपेयर करते रहते हैं कि हम तो ऐसे नहीं थे, आप लोग ऐसे क्यों करते हो. हमारे टाइम पे भी तो इतना सारा मीडिया एक्सपोजर नहीं था, हमको तो जो भी चाहो देखने को नहीं मिलता था. अगर हम चाहेंगे कुछ लैंग्वेज सीखने में, ऐसे भी एडोलेसेंट्स है जो लैंग्वेज खुद से सीखते हैं. कोरियन लैंग्वेज सीखी. आई हैव एन एग्जांपल ऑफ अ यंग गर्ल, 17 इयर्स की बच्ची थी. वो कोरियन लैंग्वेज खुद से सीख ली. कैसे सीखा पूछने से, ऐसे ही यूट्यूब पे जाके वो डाउनलोड के सीख ली. क्या की. सो दे नो आल्सो हाउ टू इम्प्रूव देमसेल्व्स. इट्स नॉट लाइक दे आर ऑलवेज ऑन द नेगेटिव पाथ. So we have to encourage the positive things that they do, and also stop the negative things that if at all they are doing, and rectify that or correct that behavior. So developmental issues during adolescence जो होता है, जो problems लेके उनका शुरू होता है, since we discussed about the proper ways of eating, so there will be a problem related to food also, which we will categorize into two कैटेगरीज. एक होता है ज्यादा खाने से प्रॉब्लम, दूसरा होता है कम खाने से प्रॉब्लम. एक है बुलिमिया, दूसरा है एनोरेक्सिया नर्वोसा. सो एनोरेक्सिया नर्वोसा इज जब बॉडी इमेज एक होता है. आजकल जीरो फिगर्स बड़ा स्टाइल है. जीरो फिगर बनाने के चक्कर में दिस यंग गर्ल्स, एक्चुअली बॉयज आल्सो, दे आर कॉन्शियस अबाउट देयर हाउ देयर बॉडी लुक्स, जो जाके बॉडी बनाने में लग जाते हैं.
हाँ, तो ये एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है उनका बॉडी इमेज प्रॉब्लम होता है. सो दे वांट टू फिट इनटू अ पर्टिकुलर वे ऑफ लुकिंग एंड देयर बॉडी, they will starve their body from proper food. So anorexic दिखते हैं, जैसे पतले होके they become very thin, they will lose hair, फिर बाल झड़ रहे हैं करके उनका प्रॉब्लम होता है कि हमारा तो लुक्स भी चेंज हो गया. But all that is related to eating patterns only. They don't realize that because they are focused on the idea of maintaining a zero figure. So anorexia nervosa हो गया, ये ना खाने की बीमारी. बुलिमिया है ज्यादा खाने की बीमारी. बुलिमिया में क्या करते हैं, they eat a lot, then they feel very गिल्ट फील करते हैं, ओ खाए मैंने कितना सारा खा लिया, अब तो मैं मोटी हो जाऊंगी. देन दे पर्ज इट आउट, दे पुट फिंगर्स इनटू देयर माउथ एंड दे वो उल्टी करके फिर निकालते हैं बुलिमिया में. तो खा लेते हैं, गिल्ट फील करते हैं, दिस इज अ साइकिल. देन फिर वो भूख लगती है तो फिर से कुछ खा लिया, फिर दे स्टार्ट फीलिंग गिल्टी. सो दिस ऑल दीज आर अफेक्टिंग देयर बॉडी इमेज. सो बॉडी इमेज जो उनको लगता है, इगोसेंट्रिज्म उनका एक आइडिया है कि आई एम द बेस्ट और मुझे कोई हरा नहीं सकता, मैं जो बोलता हूँ ठीक बोलता हूँ या मैं जो बोलती हूँ ठीक बोलती हूँ. ये आइडिया उनके दिमाग में जब बैठता है, बिकॉज द सेंस कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इज गेटिंग अ स्ट्रॉन्ग ग्राउंड अराउंड दिस एज. बच्चों को पूछो तो, छोटे बच्चों को पूछोगे आपका नाम क्या है, आपके पापा का नाम क्या है, वो मतलब जैसे प्रिपेयर होके आते हैं, बोलते हैं. बट और तुम कौन हो पूछो तो मैं मम्मी का बेटा हूँ, मैं पापा का बेटी हूँ, पापा की बेटी हूँ, ऐसे बोलते हैं. बट व्हेन दे रीच दिस एडोलेसेंस, एक्चुअली इफ यू आस्क देम कौन हो तुम, दे विल से देयर नेम. एंड सो स्लोली द सेल्फ कॉन्सेप्ट ग्रोज. एंड if you want them to introduce themselves also, you will see how this changes over a period of time. बच्चों को बोलो तो अपने बारे में 2 मिनट बोलो तो they will say things which is always linked to their surrounding area. First primary interaction जिनके साथ होता है उनको लेके वो अपना इमेज ढूंढते हैं. और adolescents को बोलो तो they focus on their own self. I would like to play, or I am a member of our school group, or I am the member of sports club or something, they would say. So their self concept is getting stronger. So around this time they also have issues related to body, mind, and the way people understand them and the way they understand themselves also. उसमें रिलेटेड जो इश्यूज होता है, एक है बॉडी इमेज, कंसर्न ओवर ईटिंग पैटर्न्स, यूजिंग ऑफ सब्सटेंस यूज. मतलब जैसे मुझे पता नहीं कैसे, मतलब रेसिडेंशियल स्कूल में ये प्रॉब्लम है कि नहीं, क्योंकि ये तो निगरानी में रहते हैं ना, तो ज्यादा नहीं होता होगा. ड्रग एब्यूज का प्रॉब्लम होता है. कहीं पे नहीं नहीं होता मैडम, है ऐसा कुछ नहीं होता ज्यादा. ना ना, ऐसा नहीं. मेडिसिन. अच्छा, और एक बात, एक तो ड्रग यूज हो गया, मेडिसिन भी ड्रग है. सो मेडिसिन का यूज भी वो उसी में ही आता है. बिकॉज और एक पेरेंट्स लाए थे पहले, बहुत दिन हो गया, दिस इज अबाउट 2005-6 के टाइम पे, ये जो खांसी की लिक्विड क्या पोरेक्स या कुछ मिलता था तब, तो उनका बच्चा जो है बिना खांसी होते हुए भी वो जाके पी लेता था. सो एनी एडिक्शन to any substance when it is not required by the body is addictive problem, or misuse or use of substance हम बोल सकते हैं, क्योंकि उसको तो दिया नहीं है, डॉक्टर ने खा लेता है. ये भी होता है एक डर कि घर पे, इसीलिए तो बॉटल्स पे लिखते हैं, ये मेडिसिन पे लिखते हैं कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन. सो एडोलेसेंस को ये सर दर्द की दवाई, ये सब एडिक्शन होता है खाने से.
और एक था एक्टिफेड करके। तो ये बंदा क्या करता था, उसका टैबलेट गर्म पानी के साथ पी लेता था। Sometimes this also happens, which we can categorize under the heading of use of substances, because it is misuse of substance or misuse of the medicine or any chemical composition which is not given by the doctor but the person is taking, which can be treated. But I would assume that स्कूलों में आजकल ऐसा नहीं होता है, but since I have been practicing, I am into practice for the last 18 years, ये changes तो देखा है मैंने। मेडिसिन बिना मतलब का खा लेना, ये गर्म पानी से खाने से बड़ा अच्छा नींद आता है करके वो बोलता भी था। And then risky behavior, since they are also getting curious about the other sex. Boys are getting curious about girls and girls want to know more about the boys, or they are stopped from being friendlier during the stage. तो उनका curiosity ज़्यादा होता है, and since they are trying to explore each other, so they might engage in risky sexual behavior, which might lead to pregnancy related issues or sexually transmitted diseases. ये सब इश्यूज ड्यूरिंग द एडोलेसेंस में आते, इनको फेस करना होता है। और एक है एग्रेशन, गुस्सा बहुत आता है। जो भी बोलो, बच्चों को एडोलेसेंस स्टेज में, इस एज में पर्टिकुलरली ज़्यादा गुस्सा बहुत आता है, बिकॉज ऑफ द हार्मोनल प्रॉब्लम्स अगेन। सो व्हेन इट इज नॉट रिलीज्ड, उनको गुस्सा बहुत आता है। इसीलिए बोलते हैं, गुस्सा जब करते हैं बच्चे, पेरेंट्स बोलते हैं जाओ तुम घूम के आओ, फिर बात करते हैं। You take a walk, then we'll talk. Then antisocial activities is also an issue during the developmental stage of adolescence. So इसमें क्या होता है, ये जो हम developmental period पे eating habits, sleeping habits, ये सब डिस्कस किए, उसमें होता है कि all these activities might lead to obesity, clinical disorders or eating disorders, substance abuse or substance use disorders, disabilities, ये सब हो सकता है। और जोर से चलाना, रैश मोटर ड्राइविंग, ये सब देखने को मिलता है एडोलेसेंस में। एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स ऑल्सो हम देख सकते हैं कि एडोलेसेंस में ज़्यादा होता है, बिकॉज दे वांट टू मेंटेन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिहेवियर विच द मीडिया का प्रॉब्लम है कि ये बोलते हैं कि ऐसे ही दिखना चाहिए, हीरो हीरोइंस तो ऐसे ही दिखते हैं तो हमको भी ऐसे ही लगना चाहिए। तो उसको कॉपी करने में इनका खाने पीने पे ध्यान मत देना, और रैश ड्राइविंग, जैसे हीरोज चलाते हैं वैसे ही चलाना, गाड़ी वैसे चलाना, ये सब इनको करने में मज़ा आता है। नहीं तो कंपटीशन जैसे लेते हैं, ग्रुप्स में जाके ड्राइविंग करना, ये सब। So what is the role of a teacher in residential schools to facilitate physical and cognitive development? आप लोग कैसे उनको फैसिलिटेट करेंगे? वो तो बच्चों का वैसे भी यू पीपल आर ओवरबर्डन विद, बहुत ज़्यादा ही काम होता है बच्चों को लेके। फिर उसके साथ और फैसिलिटेट कैसे करना है? बाय पेइंग अटेंशन। आप लोग बोलेंगे कि हम तो इतना टाइम देते हैं बच्चों को, उनको 24 घंटे देखना पड़ता है। दे आर ऑल्सो स्टेइंग इन योर स्कूल, रेसिडेंशियल स्कूल में वही प्रॉब्लम है, यू आर द टीचर, यू आर द पेरेंट ऑल्सो, क्योंकि स्कूल के बाद फिर से वो आप ही को देखेंगे। सो यू बिकम द, यू हैव टू प्ले द रोल ऑफ अ पेरेंट एंड स्कूल में टीचर। सो देयर विल बी रोल कंफ्यूजन। बच्चे को ये बोले तो स्कूल में फिर कैसे, बाकी बच्चे भी डे स्कॉलर्स नहीं है, तो what would be the role of a teacher in a residential school? So उसके लिए कैसे आप लोग तैयारी करते हो? So you can take steps in the residential schools to facilitate physical and cognitive development. You can create awareness, health related जो आपका है टॉपिक्स, उस पर डिस्कशन करके आप अवेयरनेस फैला सकते हैं। सेक्सुअल एजुकेशन again has to be given importance, because these are
adolescents who are curious by nature, and they might also do self-harming behavior. Then health awareness can be included in the curricular programs also. Specific time for sports and physical exercise और activities के लिए आप लोग उनको बता सकते हैं कि इस टाइम पे खेलना है या स्पेसिफिक प्रोग्राम्स कराना है. स्कूल में तो टाइम नहीं हो पाता है. When they are back into the hostel, आप लोग उनका एक्सरसाइजिंग प्रोग्राम्स का कुछ कंपटीशन या कुछ एनकरेज करके करा सकते हैं. सेल्फ कॉन्फिडेंस इंस्टिल करा सकते हैं उनमें. उनको ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी दे सकते हैं बाय गिविंग देम द अपॉर्चुनिटीज. उनको ये फायदा हो सकता है कि जो सब वो खुद पढ़ते हैं या देखते हैं उसका कुछ आप इम्प्लीमेंट करके रियली करा सकते हैं हॉस्टल में, जिसमें उनको मजा भी आए और सीखने को भी मिले. Then comes psychosocial development. While talking about the development during adolescence, we have this component also, psychosocial development. ये तो हो गया physical development हम देख लिए, cognitive development देख लिए, zonal proximal development जैसे हम पढ़ लिए, पियाजे का थियोरी, विगोत्स्की का थियोरी, ये सब पढ़ने के बाद ये सपोर्टिंग साइकोसोशल डेवलपमेंट कैसे करते हैं. साइकोसोशल मीन्स योर इमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. आप कैसे, आपको याद करने के लिए बोलूँ तो अभी आप मैं से किसी को पूछूं कि अपने बचपन का कौन सा एक कोई अच्छा सा इंसिडेंट आपको जो याद है जब आप छोटे थे, बताओ, तो आपको कौन सा इंसिडेंट याद आएगा जो इंसिडेंट ज्यादा इमोशन से भरा हुआ हो, whether नेगेटिव और पॉजिटिव, है ना. सो इमोशनल डेवलपमेंट during this adolescence is also a very important aspect. So psychosocial development जो बोलते हैं उसमें emotions भी include है, क्योंकि ये जो है the self is changing, the concept of self, and they are becoming aware about their own sexuality also. जैसे पहले था, आजकल तो LGBTQI has become so common and a topic of discussion that इसका डिटेल्स बताने को जरूरत नहीं पड़ता है आजकल के बच्चों को. I'll share a story again about this girl. जगतपुर करके एक एरिया है, उधर से इतने दूर से, गांव जैसा एरिया है, इतना भुवनेश्वर जैसा भी नहीं है. सो उधर से एक लड़की आई थी, वो शॉर्ट पैंट पहन के, शॉर्ट पैंट मतलब जैसे बच्चे पहनते हैं वैसे नहीं, मतलब बॉयज का जैसे जीन्स भी नहीं, पैंट बनवा के, क्योंकि दे आर नॉट सो रिच, सो पैंट्स बना के पापा का पैंट जैसे पहनी है वैसे दिखती थी, और ऊपर शर्ट जैसे हाफ शर्ट होता है, हवाइन शर्ट, वैसे एक पहन के आई थी पेरेंट्स के साथ. पेरेंट्स का कंप्लेन था कि ये अपने आप को लड़की मानने को तैयार ही नहीं है. ये बोलती है कि मैं तो ऐसे ही पहनूंगी, लड़कियों का ड्रेस पहनने से उसको शर्म आती है. सो इस केस में क्या किया जाए, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट आइडेंटिटी, सो दे will have confused identities, will say, or this is their own identity, because gender or sexuality, these are two different things. So that also, again, we will have to find out whether it is a serious thing or it is just a matter of confusion, and we can talk to them about it. And just because they feel that way only with a particular person, इसीलिए उनको ऐसे लगता है कि उनको लड़की होके लड़का जैसा फील होता है या लड़का होके लड़की जैसा फील होता है. दिस इज ऑल्सो अ बिग इश्यू दिस डेज दैट द यंगस्टर्स आर फेसिंग, दिस टीनेजर्स स्पेशली व्हेन दे आर डेवलपिंग द सेल्फ कॉन्सेप्ट. So self concept is a conscious, cognitive and experiential perception that they evaluate themselves. वो अपने आप को कैसे, किस तरीके से डिफाइन करते हैं. सो सेल्फ कॉन्सेप्ट बोलते बोलते उनको उनका सेक्सुअल आइडेंटिटी भी आ जाता है. तो दैट ऑल्सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट. इफ यू हैव
the when you talk about the self development, psychosocial development of the self or the adolescent self, we'll come across self-esteem, self-concept, terms like self-identity. So when you are talking about this self-identity, we have the theory of Erik Erikson. His name was Erik Erikson. आपने पढ़ा होगा. So he has talked about 8 stages. 8 स्टेज का बात किया है उन्होंने. स्टेज 1 से लेके स्टेज 8 तक कवर करता है, बचपन से लेके जन्म से लेके 65 प्लस एज तक. सो उनमें से he talks about this duality, trust versus mistrust. जो डेवलपमेंटल स्टेज वो इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है, अगर वो डेवलपमेंटल स्टेज सही तरीके से नहीं हैंडल किया गया तो टू व्हाट एरियाज ऑफ प्रॉब्लम दे कैन लीड टू, वो भी वो बोले हैं. ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट. फॉर एग्जाम्पल एक छोटा बच्चों का मैं बताती हूँ, then I will have the adolescents also, how they develop it. So when it is not handled properly, बच्चों को जैसे फेंक के खेलते हैं, बच्चों को पकड़ के ऊपर फेंकते हैं हवा में, पकड़ के बच्चा, छोटे छोटे बच्चों को खेलते हैं, ऐसे करते करते बच्चा गिर गया किसी के हाथ से, एंड दे आर ग्रोन अप इनफ. 1 साल का बच्चा तो उसको याद रहता है इतना कि मैं गिर जाऊंगा तो मुझे चोट लगेगी, इतना तो लगता है. इसीलिए आपने देखा होगा बच्चे भी केयरफुली ही बेड से उतरते हैं, इतने छोटे बच्चे होके भी. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ, माई बॉडी विल गेट हर्ट, मेरे शरीर को लग जाएगी, इतना तो उनको पता ही रहता है. अगर ये गिर गए उसी टाइम पे तो मिसट्रस्ट उनका, वो फिर से उनको डर लगा रहता है कि नहीं, मुझे ये आदमी, ये अंकल उठाए थे, ये दोबारा मुझे ऐसे लेके गिरा सकते हैं, इसीलिए देख के वो रोना शुरू कर देते हैं फिर उस आदमी को. ये सारे केसेस में नहीं होता है, किसी किसी के केस में होता है. ये भी है, बचपन में हो गया. सो मिसट्रस्ट विल बी permeating into all other areas where they cannot trust the person. और हर स्टेज का एक होता है वर्च्यू और उसका नेगेटिव आउटकम होता है. तो ड्यूरिंग दिस एडोलेसेंट स्टेज इन द इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, उनको लगता है कि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, द कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है फिर उनका इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी. उनको पढ़ना चाहिए, फॉर एग्जांपल उनको तो पढ़ाई करके अच्छा नंबर लेना चाहिए, नहीं तो हर जगह से मार मिलता है या डांट मिलता है. तो ये क्या करेंगे, व्हेन दे हैव अ प्रॉब्लम विद दिस फेज, 6 to 12 years में आता है ये स्टेज. सो उनका उसका नेगेटिव आउटकम होता है कि ये अगर ठीक से हैंडल नहीं किया इस स्टेज को तो उनका इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत दिन के लिए इट कंटिन्यूज. आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट फाइंडिंग द प्रॉपर वर्ड समटाइम्स हिंदी में. सो इनका कंटिन्यू करता है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. तो उसको कंपेंसेट करने के लिए ओवर कंपेंसेशन हो जाता है, उनका ढाल बन जाता है फिर. तो उनको नहीं आता होगा, फिर भी कभी नहीं मानेंगे, एंड दे विल नॉट आस्क क्वेश्चंस आल्सो. कहीं क्लास में बच्चे मजाक ना बनाया उसका, इसीलिए वो लोग कुछ बोलेंगे नहीं कॉम्प्लेक्स की वजह से. और उसका वर्च्यू ये है कि कॉम्पिटेंस उनका विल बी क्वेश्चन एंड दे विल नॉर्मली ट्राई टू overcome that inferiority by giving more time into the area of study, whatever it is. खेलने में या पढ़ाई में वो ज़्यादा टाइम दे के वो they will try to achieve what they are not capable of doing. और एक है उनका identity versus role confusion. So इस टाइम पे rebellious हो जाते हैं बच्चे, उनको जो बोलो उनको अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए that is also a problem they have to face. और एक है आइडेंटिटी इश्यू, उनके among प्रॉब्लम होता है कि उनको आइडेंटिटी को लेके.
So they look for status symbols. अगर मेरे फ्रेंड का ऐसा वाला फोन है तो मैं भी ऐसे वाला फोन लेके होगा तो जाके जाऊंगा मैं। ये भी देखने को मिलता है, स्टेटस सिंबल बन जाता है फिर बेसिक स्टेटस सिंबल। सो पर्टिकुलर हेयर स्टाइल के लिए, पर्टिकुलर कपड़े के लिए, आजकल तो ये कपड़ा और हेयर स्टाइल छोड़ो, वो तो फोन के लिए जिद्दी करते हैं। High risk behavior also is seen among these adolescents, identity issue को लेके। High risk behavior like they start drinking or smoking। छुप के आपने देखा होगा बच्चे कहीं से उठा के लेके आए होंगे आधा यूज किया हुआ सिगरेट बीड़ी, ये सब they try and they want to know what is there that the adults look so smart in doing. So और एक है मेरे फ्रेंड ने किया तो मैं भी करूंगा और मैं भी करूंगी। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग दे वांट टू एक्सपेरिमेंट विद व्हेन दे सी देयर फ्रेंड्स डूइंग, और दे बिकम रेबेलियस इन नेचर बिकॉज ऑफ देयर प्रॉब्लम आइडेंटिटी क्राइसिस जो होता है उनको। तो उसके लिए दे कीप थिंकिंग अबाउट abstract ideas which is not, which may not be true also। वो they try to overcome that identity crisis and the increase in abstract thinking। Am I audible? Am I connected? Yes, you are connected. Yes, okay, thank you। They become very rebellious in nature। Then ये टाइम होता है हीरो वर्शिप। किसी किसी का तो मतलब दिमाग में, आप लोग में से जो टीचर्स हैं, आप किसी किसी बच्चों के लिए हीरो भी होंगे, ये तो आपने देखा होगा। हीरो वर्शिप जो करते हैं टीचर्स को भी करते हैं। सो यू ट्राई टू बी दैट टीचर हु दे विल वर्शिप। सो यू शो दैट बाय योर बिहेवियर एंड बाय योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एडोलेसेंट्स। सो हीरो वर्शिप जो इस एज में होता है, ये एडवांटेज है टीचर होने का कि आप उनके हीरो बन सकते हो। कैसे? Some adolescents problem or also there are cases that is, but I'm sure you must have seen enough also feel एक्सक्यूज मी मैम, ये जो हैंड रेज किया है इनके कुछ डाउट है क्या? इनकी वजह से डिस्टरबेंस हो रहा है। सुप्रिया नाम से। अच्छा, what is the question? Question है क्या? Any questions? हैंड रेज था ना तो उनका। Because I'm logged in from my mobile actually, क्योंकि यहाँ पे नेट प्रॉब्लम है, आज खुदाई किया हुआ है कुछ। हैंड रेस तो किसी का भी नहीं है। प्रीति करके। I'm so sorry, I'm not able to know. Can you tell me what is your question? Supriya, right? यस मैम, सुप्रिया नाम से हैंड रेज किया हुआ है। अभी उन्होंने म्यूट कर लिया तो डिस्टरबेंस नहीं हो रहा, पहले अनम्यूट था तो डिस्टर्ब भी हो रहा। Is there any doubt? कोई डाउट है? You want to revisit any concept? Okay, we'll continue then. About adolescent sexuality. So Yes, you carry on, ma'am. yes, okay.
So during puberty, actually, these youngsters are, since they are going through hormonal changes, the hormones need to be released and channelized into proper ways. So there is a case also, like पहले एक बच्ची को पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था, फिर बाद में वो बस देखती रहती थी बाकी स्टूडेंट्स को, लड़कों का ध्यान ज्यादा गया. तो is it because she is suddenly losing interest in studies or it is because of the age? ये नहीं समझ के अगर हम लोग उनको डांटेंगे और उल्टा सीधा बोलेंगे तो they will become rebellious. Instead of trying to correct their behavior, वो डिफेंसिव मोड पे आ जाएंगे. हम तो नहीं देख रहे थे, आप ऐसे हमको बोल रहे हो, हम जैसे गंदे बच्चे हैं. उनको लगेगा कि मैं जो भी करूं सर या मैडम तो समझेगी ही नहीं मुझे, तो मुझे वही करने दो. ऐसा भी एक सेक्सुअल बिहेवियर जो होता है उनका, फीलिंग्स अबाउट वन सेल्फ और अबाउट अदर्स, सिंस दिस इज नेचुरल फॉर दिस एज टू गेट अट्रैक्टेड टू द अपोजिट सेक्स, उनको तो इंटरेस्ट आएगा, लेकिन उसको कैसे हैंडल करते हैं एज टीचर्स, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन देयर इंटरेस्ट इन द अदर सेक्स. सो कितना हवा देते हैं उनके इस बिहेवियर को हम, वो डिपेंड करेगा how we handle such distractions in their studies. Then sexuality education. In our schools now it has become almost compulsory, or I don't know how this chapter is handled. Sex education, sexuality education, sometimes we may be having bad ideas about, as adults also we are not free from wrong ideas, क्योंकि adults होके भी wrong ideas रखते हैं जिसका प्रभाव बच्चों पे पड़ता है. wrong ideas मतलब हम किसी एक बात को अगर बुरा मान लेते हैं तो मानने को तैयार ही नहीं होते हैं कि ये एज का प्रॉब्लम है और ये टाइम पीरियड का प्रॉब्लम है और ये मीडिया से सीख के आए हैं बच्चे, या पीयर ग्रुप भी इन्फ्लुएंस कर सकता है. बस हम अपने बच्चों को ही डांटने में लग जाते हैं. तो ये जो है, what is the best way to teach them sexuality education, जैसे अंदर कुछ फील करते हैं, दिखते हैं कैसे. gender is actually socially assigned role. जैसे आप फॉर्म फिलअप करते वक्त सेक्स मेल फीमेल और अदर्स होता है, पहले अदर्स नहीं होता था, आजकल ऐसे ऐड हो गया है. क्यों? क्योंकि there are different identities also, which is the psychologically how they feel about themselves, whether psychologically they are feeling like a boy or like a girl. Being a boy is not important. If they feel that way, then it has to be talked out. So bodily changes, the influence of mass media, then the way friends treat them, it all depends on their behavior during this period. और एक केस था, टीचर्स का बिहेवियर कितना इम्पोर्टेंट होता है इसमें पता चलता है. एक लड़का बहुत होशियार था वो पढ़ाई में भी. एक बार उसको टीचर ने देख लिया, उसका फेवरेट टीचर, बिकॉज ही यूज्ड टू बी वेरी गुड इन मैथ्स, सो मैथ्स टीचर यूज्ड टू लव दिस किड. सो वो जैसे लड़कियां पैर फोल्ड करके बैठते हैं, सो ही वाज सिटिंग लाइक दैट इन द स्कूल गार्डन, एंड ब्रेक के टाइम पे टीचर, वो मैथ्स टीचर ने देख लिया, तो सबके सामने वो उसको डांट लिया कि वो तो लड़कियों जैसे बैठ के क्या पढ़ाई करता था, मैथ्स कहाँ आएगा आज, इसीलिए इसको मैथ्स नहीं ठीक कर रहा है. ऐसे कुछ वो मजाक मजाक में बच्चे को बोल दिया. बट इट हैड सच अ बैड इम्पैक्ट ऑन दैट चाइल्ड. देन अदर्स स्टार्टेड लैफिंग, बाकी सब उस पर हंसने लगे. और ये जो बच्चा था जो पढ़ने में होशियार था, suddenly he started thinking that everybody is going to laugh at me no matter what I do. So how you react to the situation, to the immediate environment that the child belongs to is also very important. So for that, the norms have to be followed, like no one should ridicule the child about their own identity or about the way they behave or about their social interactions. So sexuality education क्यों चाहिए? Because it has to teach children about understanding their body and mind in the context of
puberty age पे they need to know and understand themselves first. बाद में जाके उनको बाकी सबके बारे में समझ में आएगा, जब अपने आप को खुद से समझ जाए तो। इंटरपर्सनल कॉन्टेक्स्ट में कैसे वो रिएक्ट करते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे है, इमोशनल रेगुलेशन उनका ठीक है कि नहीं। इमोशनल रेगुलेशन इज टू कंट्रोल द इमोशंस, क्योंकि ये इमोशंस से भरा हुआ स्टेज है। इमोशंस से भरा हुआ क्यों है? अगेन वी कैन ट्रेस इट बैक टू द हार्मोन्स दैट गेट रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। सो इस हार्मोन्स के वजह से उनको ज़्यादा गुस्सा आता है, ज़्यादा वो रिस्क टेकिंग बिहेवियर भी दिखाते हैं। ये सब के लिए हमको समझना चाहिए कि ये अपने आप से खुद नहीं करते हैं, जानबूझ के नहीं करते हैं। इट इज़ द रिएक्शन टू द वे दे आर गोइंग थ्रू and the changes that the body is adapting to. So ये sexuality education और sex education से क्या फायदा होता है? एक पोक्सो एक्ट भी निकला है जो that is to protection of children from sexual offenses. अगर इनको good touch और bad touch इस सब में ये सब नहीं सिखाएंगे तो उनको पता नहीं चलेगा उनके साथ गलत भी हो रहा है कि सही हो रहा है। और by the time they realize that they are being sexually abused, उनके साथ कुछ हो ही जाता है। इसीलिए this sexual education is very important in schools and being teachers in residential schools where you are also playing the role of a parent. It is very important for you guys for you teachers to teach the kids about the right kind of behavior and how they should not try to cross the boundaries of another person or another child, and when they are freely maintaining a very healthy connection with their adolescents or with the students, then only they can approach the child when needed. नहीं तो वो खोल के बोलेगा नहीं। इतना भरोसा करने के लिए शुरू से उनके साथ अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। और सेक्सुअलिटी एजुकेशन शुड नॉट बी नैरोड डाउन टू सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ ओनली। एक स्कूल के बच्चे में हम देखे कि आपके स्कूल में है, वी वर टॉकिंग अबाउट गुड टच एंड बैड टच, वेरी यंग किड, लड़का था वो, तो हम बोले कि आपको मालूम है? हाँ मालूम है। क्या मालूम है? और ही सेड कि हमको मालूम है कि हमको बताया गया है ऐसे ऐसे। देयर आर 3 एरियाज, एक सॉन्ग होता है, देयर आर 3 एरियाज वेयर नो वन कैन टच करके एक बच्चों को सिखाया जाता है। तो वो गाने जैसा गा लिया लेकिन उसका मतलब नहीं मालूम। तो ये टीचर्स को भी शर्म आती है कि हम कैसे सिखाएं इनको, बस अवॉइड कर लेते हैं। ऑल अबाउट बीज, बर्ड्स एंड बीज हो गया, कुछ हो गया तो वो तो सब सिखाएंगे बताएंगे, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं एनकरेज करते हैं। तो वो फिर बच्चे जाएं तो कहाँ जाएं? दे शुड नो द आंसर फ्रॉम द राइट सोर्सेज इंस्टेड ऑफ avoiding the questions. We should encourage them to know the answers and to teach them also, so that इनके साथ कुछ बुरा ना हो और उनको पता भी चले कि उनके साथ अगर गलत हो रहा है तो क्या कर सकते हैं, कहाँ जाएं। ये सब पढ़ाने के लिए भी होना, फैसिलिटी होना जरूरी है। So this is any questions? So there is also something called emotional competence. Emotional means emotional competence बढ़ाने के लिए भी कैसे क्या कर सकते हैं हम? There are some strategies which are related to the interpersonal aspect. अपने खुद को समझने के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए हम जब शुरू किए थे, I emphasized upon the fact that we should understand ourselves first, so that we can understand our adolescents in a much better way. So interpersonal is between people, between persons. Intra means within the person. Understand oneself properly.
So for that, the strategies to be followed are: understand your own emotion in terms of physiological responses. आप कैसे फील करते हो उसको लेबल कर पाते हो कि नहीं. फॉर एग्जाम्पल, आपको गुस्सा है तो sometimes some people express their emotions very differently. सबको गुस्सा है तो सब एक जैसे बिहेव नहीं करते हैं. किसी को गुस्सा आता है तो कोई चिल्लाता है, कोई चुप हो जाता है, कोई जगह छोड़ के चला जाता है, और सबका रिएक्शन भी अलग अलग होता है. So how to read the emotions in different people and how to understand your own emotion and give it a right way of or how to channelize it in a acceptive manner. So identify करना भी जरूरी है पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशन में. जैसे हो गया खुशी होना, खुश होना, और प्रेज करना किसी को, ये सब तो पॉजिटिव है. नेगेटिव इमोशंस को हम ज़्यादा बढ़ावा नहीं देते हैं ताकि वो कंटिन्यू ना करे, वो धीरे धीरे गायब ही हो जाए, बच्चे दिखाएंगे नहीं वो नेगेटिव इमोशंस. एंड अंडरस्टैंडिंग दैट इमोशंस आर इवोक्ड बाय कॉन्टेक्स्ट एंड लीड्स टू कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बच्चों को ये इमोशंस आता है. अगर कोई दूसरा बच्चा उनको टीज किया तो वे बोलते हैं, आपने देखा होगा कि उसने मुझे ऐसे बोला इसीलिए मैंने गुस्सा किया, नहीं तो मुझे गुस्सा नहीं आने वाला था, ऐसे भी बोलते हैं. सो दे एक्चुअली डोंट टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इमोशंस दैट दे शो. सो उस टाइम पे सिंस दे आर डेवलपिंग देयर ओन सेल्फ कॉन्सेप्ट ऑल्सो, और सेल्फ एस्टीम उनका बिल्ड होता है. सो उस टाइम पे हमको ये भी बताना जरूरी है टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन एक्शंस. ये नहीं कि हर वक्त पे बोलेंगे कि वो दूसरा बंदा, वो मुझे जो दूसरा स्टूडेंट है वो उन्होंने ऐसे किया तो मैं कूद पड़ा मैदान में, नहीं तो मैं झगड़ा करने वालों में से नहीं हूँ. हाँ, ऐसे बहुत बार देखने को मिलता है. एंड देयर इज वन वे ऑफ कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, हाउ यू थिंक अबाउट द सिचुएशन. अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई बोले कि उसने तो मुझे ललकारा कि आप उसको मार के आ सकते हो कि नहीं, इसीलिए मैं जाके उसको दो धक्का दे के आ गया. उस टाइम पे ये रिस्ट्रक्चरिंग होना भी जरूरी है. उसको कैसे समझाएंगे? कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग. आप बोल सकते हो कि ये तो दिखाने की जरूरत नहीं है, वो तो आपसे हरा हुआ होगा, क्यों आपको बताया. सो चेंज इन द वे यू थिंक. तो ऐसे नहीं करके आप उसको बुला सकते हो पढ़ाई के लिए या मैथ्स का प्रॉब्लम करके, नहीं तो So for that you have to change the situation and the way they think. ये भी ऐसा भी एक हो सकता है करके उनको मालूम नहीं होता है. There are some strategies. Interpersonal is between people, as I was saying. दो बच्चों में या टीचर और स्टूडेंट में या स्टूडेंट के अंदर इंटरेक्शन. सो इंट्रापर्सनल तो आपने देख लिया कि कैसे खुद को समझा जाए और कैसे रीड करें हम अपना इमोशंस को. इंटरपर्सनल में यू हैव टू डेवलप एम्पैथी. एम्पैथी इज टू बाकी की इमोशंस, दूसरे लोगों का इमोशंस, दूसरे बच्चों का इमोशन, बाकी टीचर्स का इमोशन हो गया, उसको सही तरीके से कैसे समझा जाए. ये एम्पैथी इज डिफरेंट फ्रॉम सिंपैथी. Empathy is putting yourself in the souls of a person and feel the way they feel. Sympathy में आप बोलोगे हाँ मुझे पता चल रहा है आपको कैसे लग रहा होगा, लेकिन इसमें you have to really put yourself into the other person's shoes and feel what they feel. Then इसमें interpersonal में developing communication skills, effective communication skills. सबको पता होता है लेकिन कैसे बताएं मालूम नहीं पड़ता है. मुझे तो ऐसे ही फील हो रहा है, मुझे रोने को मन कर रहा है, लेकिन पता नहीं कैसे रोऊं, कैसे दुख अपना दिखाऊं, किसी से शेयर कैसे करूं. ऐसे भी बच्चों का होता है. तो उसी वक्त आपको जरूरी है कि ये उनको सिखाएं इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, और किसके साथ जाके वो शेयर करें ये भी होना जरूरी है. कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्किल्स भी उनका बताना जरूरी है. कॉन्फ्लिक्ट
जैसे एक ही एज ग्रुप के बच्चे एक साथ रहते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट तो होता होगा। टीचर्स को बीच में इंटरफेयर करके झगड़ा कम करना होता होगा। रेफरी, you become a referee sometimes you are a teacher, sometimes you are a parent, sometimes you are a referee। हाँ, झगड़ा हो गया तो आपके पास आ जाता है। सो प्रैक्टिस कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स, सो बच्चों को ही सिखाना होता है। सो these are the important strategies you have to follow। प्रैक्टिस लिसनिंग अगेन, हम जो लिसनिंग बोलते हैं ये एक एक्टिव लिसनिंग होता है। एक्टिव लिसनिंग मीन्स कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि किसी से बात करने में मजा नहीं आता है, ये तो उसको बोलो तो वो तो सुनता ही नहीं है, हाँ 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 बोलता रहता है। ऐसे भी बोलते हैं हम किसी को लेके। और समटाइम्स वी रियली लव टॉकिंग टू पीपल हु आर एक्टिवली लिसनिंग टू आवर प्रॉब्लम्स। सो बिकम दैट, यू हैव टू बिकम दैट एक्टिव लिसनर जो ध्यान देके सुनता है बच्चों का, सो दैट दे विल ऑल्सो लर्न फ्रॉम यू। ऐसे करने से बच्चे कंफर्टेबल हो जाए तो उनको भी आदत पड़ जाएगा, वो भी वैसे बनने की कोशिश करते हैं। बिकॉज यू रिमेम्बर आई सेड यू कैन बिकम अ हीरो इन द चाइल्ड्स लाइफ, इन द एडोलेसेंट्स लाइफ। वो हमको तो उसी सर जैसे, उसी मैडम जैसे बनना है बोलते हैं। सो यू बिकम दैट एग्जाम्पल इन द चाइल्ड्स लाइफ, so that they will understand the right ways of expressing their emotions and showing their emotions and understanding others' emotions also। फिर इश्यूज में है बुलिंग, एडोलेसेंट प्रॉब्लम्स जो है। when we talk about adolescent problems, it is a very complex process actually। problems को लेके there are many issues we will be addressing: substance abuse, violence, suicide, bullying, cyber bullying। जब bullying बोलते हैं, bully करना, cyber bullying ज्यादा वो आम बात हो गया आजकल। then unhealthy romantic relationships, adolescent delinquency, sexting एक है। okay, when we talk about adolescent problems, we have come across substance abuse। substance abuse, bullying का आपके स्कूल में क्या रूल है? नो बुलिंग रूल भी हो गया है, बट डज दैट स्टॉप बुलिंग या होता रहता है? ये तो होता, बुलिंग भी होता रहता है बट पता नहीं चलता है। बुलिंग कोई करे तो उसको पनिशमेंट देते हैं, बोल के डर के, वो होता नहीं कहीं कहीं पे। सो बुली करना मतलब उसका हिंदी क्या है, कौन बताएगा? सुप्रिया जी बताएंगे आप, बुली का मतलब, बुली को हिंदी में क्या बोलते हैं? बच्चों को परेशान करना मैडम। हाँ, परेशान करना। और बड़े बच्चों के द्वारा या मतलब सीनियर्स जैसे जूनियर्स को करते हैं किसी भी तरह से, कोई वर्क ले लेकर। हाँ, परेशान करना, नैगिंग करना ठीक रहेगा? हाँ मैडम, सही रहेगा। चिढ़ाना रैगिंग मैडम, चिढ़ाना चिढ़ाना चिढ़ा, वही परेशान करना। उनको इतना इरिटेट करते हैं कि वो तो मतलब रिएक्ट करने पे मतलब फोर्स हो जाता है। तो चिढ़ाना मैडम, चिढ़ाना चिढ़ाना, ठीक, चिढ़ाना उनको चिढ़ाना जी। साइबर बुलिंग आजकल कॉमन हो गया, क्योंकि आजकल जैसे हमारे टाइम पे हम देखें तो हमारा प्रेजेंस ओनली फिजिकल वर्ल्ड में था। आजकल सबका प्रेजेंस एक साइबर वर्ल्ड में भी होता है, वर्चुअल वर्ल्ड में। हर किसी का एक आइडेंटिटी होता है, वो वर्चुअल आइडेंटिटी उनका होता है। उनका एक नाम भी होता है उधर, कोई रियल नाम यूज करता है, कोई दूसरा अपना हिडन नाम यूज करता है, पेरेंट्स को पता चल जाएगा करके। सो बुलिंग, उसमें भी बुलिंग होता है। उधर भी उनका ग्रुप होता है, फ्रेंड्स ग्रुप होता है, उधर भी खेल चलता है, लूडो का गेम चलता है, उधर भी कुछ कुछ गेम्स, बहुत सारा है, कुछ क्यों बहुत सारा गेम्स है। सो वो भी एक पैरेलल वर्ल्ड है। उधर भी बच्चों को मन खराब होता है तो रियल में रिफ्लेक्ट होता है। ये नहीं कि साइबर उसमें हुआ या वर्चुअल वर्ल्ड में उनका मन दुख हुआ तो दुख कोई दिया
या कोई बुली किया तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा अपने रियल वर्ल्ड में, वो मुंह लटका के फिर आएगा, किसी से बात नहीं करेगा, मूड ऑफ है बोलेगा। सो ये रियल आइडेंटिटी और वर्चुअल आइडेंटिटी एक ही बंदे का है, बस जगह डिफरेंट है। तो उसमें जो प्रॉब्लम होता है उसको भी समझने की जरूरत है। सब्सटेंस अब्यूज तो हो गया, हम देखे कैसे हाउ यू कैन एक हर जगह पे मुझे लगता है कि मतलब बच्चों को मालूम, बच्चे नहीं जिसको ड्रग्स चाहिए उसको मालूम होता है कि कहाँ पे मिलता है। तो ये क्योंकि ये सब सब्सटेंस अब्यूज प्रॉब्लम नहीं है हमारे स्कूल्स में, क्योंकि ये आपके नवोदय स्कूल में तो रेसिडेंशियल स्कूल्स बहुत मतलब अच्छे वाले वो टीचर्स उनको कंट्रोल करते हैं, पर बहुत सारे स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में एक्चुअली ज़्यादा मिलता है देखने को कि सब्सटेंस अब्यूज इज अ कॉमन थिंग। तो उसको कैसे हैंडल करते हैं? देयर आर कॉल नंबर्स, हेल्पलाइन नंबर्स, जिसमें आप फोन करके हेल्प पा सकते हो अगर आपको निकलना है उस विशियस सर्कल से। तो एंड देयर इज दिस सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर एंड सुसाइड, दिस इज अ बिग इशू। कम मार्क्स हो गया, फेल कर गया कोई स्टूडेंट, आप तो देखते होंगे कैसे थ्रेटन भी करते हैं कि मैं मर जाऊंगा घर के घर में। आई विल शेयर फ्यू थिंग्स विद फ्यू केसेस एक्चुअली, जिसमें एक बच्चा, बहुत सारे बच्चों का आप लोगों ने देखा है कि नहीं, बच्चों के हाथ में ये काटने का दाग देखा है कभी? मुझे तो लगता है किसी ना किसी ने देखा ही होगा। ये ब्लेड लगा लेते हैं, बट नॉट विद द इंटेंशन ऑफ डाइंग, मरने की चाह से नहीं, बस उनको। मैडम ये काम गर्ल्स भी करती हैं मैडम। हाँ हाँ, बट लड़के लड़कियां गर्ल्स दोनों। भी है ना मैडम, जब कुछ ऐसा हो जाता है केस तो यही धमकी देती है। हाँ हाउस मास्टर हम लोग हैं तो हम लोग को ऐसा सुनने में आया है कई बार। ये, बट ये जो ये बिहेवियर है, ये टिपिकल टू दिस एडोलेसेंट बिहेवियर है। ये हाँ जो मैडम। हाँ, ये एडोलेसेंट में, ये नहीं कि स्कूल के बच्चे ही करते हैं जो पढ़ाई करे हैं। एक गांव में भी लड़की थी हमारी नहीं, जो, एज ए हाउस मास्टर हम लोग जो देखते हैं ना वो हाँ हमने देखा है, क्योंकि ज्यादातर समय तो हम लोग का स्कूल में बीतता है, हाँ 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 हाँ। तो इसलिए। हाँ, ये कॉमन बिहेवियर जैसे उनको लगता है कि अपने आप को दुख देने में उनका स्ट्रेस रिलीज होता है। द फैक्ट इज दैट एक्चुअली मैडम अटेंशन सीकर बच्चे भी ऐसा करते हैं, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है। हाँ, अटेंशन के लिए भी करते हैं वो, या तो फिजिकली वीक है या अकेडमिकली, जैसे भी उनका कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो किसी तरह तो अब सबका ध्यान कैसे अपने तरफ करे, तो वो हाँ। इस तरह की कुछ हरकतें करते हैं। अच्छा, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर को अगर, क्योंकि हम इधर मतलब अपने आप का हमारा अंडरस्टैंडिंग अबाउट एडोलेसेंस बढ़ाने के लिए डिस्कस कर रहे हैं, अगर हम अटेंशन सीकिंग बिहेवियर को रिप्लेस कर दे कि स्ट्रेस रिलीविंग रेस्पॉन्स, कैसा रहेगा? ये एक्चुअली उनको ज़्यादा स्ट्रेस हो तो किसी किसी को ये करने की आदत होता है, क्योंकि अटेंशन सीकिंग बिहेवियर सोच के अगर हम बोलेंगे, क्योंकि हम इमोशनल कॉम्पिटेंस की बात करते हैं, सबका कॉम्पिटेंस इतना नहीं होता है कि वो इमोशनली मतलब मैच्योर्ड हो जाए। तो उनको क्या है कि क्या कर सकते हैं अपने आप को, खुद को मतलब काम डाउन करने के लिए वो कुछ करें तो उनको जो स्ट्रेस, क्योंकि हार्मोन्स ज़्यादा उनका प्रॉब्लम हो करता है, क्योंकि तो उसका आंसर सेटिस्फैक्टरी नहीं आएगा। आपने देखा होगा, पूछोगे आप तो सुबह तो सब ठंडा पड़ जाएगा, फिर कैसे किया रात को, ऐसे पता नहीं मुझे क्या लगा लेकिन मैंने सोच के नहीं किया, ऐसे बोलेंगे या नहीं मैडम? ये सोच के नहीं करते हैं, मतलब जानबूझ के सोच के नहीं करते हैं, ये इंस्टिंक्टिव इन नेचर होते हैं। ये उसको क्या बोलते हैं, इम्पल्सिव को हिंदी में क्या बोलते हैं? बिना सोचे अगर काम कर दे तो इम्पल्सिव इन नेचर होते हैं ये लोग। तो हम अगर उनको अटेंशन सीकिंग बिहेवियर बोले तो देखा गया है कि उनका नेगेटिव इमोशन डेवलप करता है टुवर्ड्स द टीचर। इसीलिए हम बोलेंगे कि उसको कोई प्रॉब्लम है तो लेट्स टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम। अगर ऐसे बोलेंगे तो दे विल ओपन अप मोर फ्रीली।
than talking about them or calling them attention seekers. So, self-harming behavior is a common way of releasing their tension or stress. देखा होगा आपने, ये तो काटने का तरीका गया, कभी कभी सर फोड़ना, सर को लेके दीवार पे पटकते हैं, देखे हैं आपने बच्चों को करते हुए? मुक्के दीवारों पर मुक्के मारते हैं, बॉक्सिंग हाँ, करते हैं, पंच मारते हैं, हाँ, या हाँ, डेस्क पे मारते हैं। जी, जी। तो ये जो सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर में ये भी आता है। तो ये इन सब का पर्पस ये है कि नॉट टू गेट एक्चुअली नॉट टू गेट अटेंशन, एक्चुअली दैट इज अ, वो उनका चीख है कि हमें हेल्प चाहिए। वो बस उनको तरीका नहीं मालूम, क्योंकि तरीका नहीं मालूम ऐसे ऐसे बिहेव करते हैं वो। तो ऐसे सोच के अगर हम चलें तो उनकी प्रॉब्लम्स को अच्छे से हम हैंडल कर पाएंगे। ठीक है। एंड ये मत समझिए कि ये सुइसाइडल टेंडेंसी है इनका, क्योंकि उनको भी नहीं मालूम होता है कि ऐसे अगर गलत कुछ हो गया तो लाइफ भी जा सकता है। उनको नहीं मालूम होता है कि इसका रिपरकशन क्या होता है, बस इम्पल्सिव होके कर लेते हैं, फिर बाद में पछता है ना जो भी आया है। सो मेंटल हेल्थ इश्यूज, नॉर्मली डिप्रेशन जो जिनको होता है वो लोग सुइसाइडल बिहेवियर में एंगेज होते हैं। बट वन मोर इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच APA ऑल्सो, मतलब जितने भी हेल्पलाइंस है सुइसाइडल टेंडेंसीज दिखाते हैं, तो हर जगह पे यही बताते हैं हम लोगों को कि अगर किसी ने मरने मुरने की बात की तो उसको कभी भी लाइटली लेना नहीं चाहिए। उसको इतना ही इम्पोर्टेंस देना जितना वो उसके लाइफ को सेव किया जा सके। तो मेंटल हेल्थ इश्यूज जिनको होता है या कोई सीरियस डिप्रेशन का पेशेंट है, डिप्रेशन इज अ डिजीज एक्चुअली, मेंटल इलनेस। क्लिनिकल डिप्रेशन होता है, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर होता है, बहुत सारा डिप्रेशन टाइप होता है। तो ये एक उसका सिम्टम है जो कोई सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर दिखाता है, खुद को कष्ट देने का जो बिहेवियर है, जिससे खुद को ही कष्ट आए, किसी को हार्म नहीं करते हैं, बस अपने आप खुद का शत्रु बन जाते हैं। और जो जिनको ये सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर दिखाने का होता है या सुइसाइडल अटेम्प्ट करते हैं, ये है उनका एट्रीब्यूट, मतलब उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में ये पाया जा सकता है कि उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज होगा, नहीं तो डिप्रेशन होगा, दे मस्ट बी इम्पल्सिव इन नेचर, बिना सोचे वो काम करते हैं, प्रॉब्लम्स होता है उनको अपने इमोशंस को हैंडल करने में, किस तरीका नहीं मालूम होता है उनको अपना इमोशंस एक्सप्रेस करने में, टेम्परामेंट उनका डिफिकल्ट होता है, फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस, जैसे उनको नेगेटिव सिचुएशन हैंडल करना नहीं आता है, या उनका टॉलरेंस लेवल बहुत कम है इसीलिए कुछ कर बैठते हैं, नहीं तो अल्टरनेटिव वेज उनको नहीं मालूम। एक अगर बुरा सिचुएशन है तो उसको देखने का तरीका भी बदला जा सकता है बच्चों का, क्योंकि वो जो सोचते हैं वो हर जगह पे हर टाइम पे सही नहीं होता है। ये भी हो सकता है कि दूसरे बच्चे का तरीका गलत था बताने में, तो इसको लग गई ज़्यादा, दिमाग में ले गया ज़्यादा, इसीलिए these are the ways how we can help them। और कभी किसी का फैमिली हिस्ट्री है सुसाइड करने का, तो ये सिंस इट इज़ अ सीरियस SMI बोलते हैं, सीरियस मेंटल इलनेस, तो अगर ये सीरियस मेंटल इलनेस फैमिलीज में, इट रन्स इन फैमिलीज एक्चुअली, इट्स इन देयर ब्लड। सो अगर ऐसे देखने को मिले तो वो भी हम उसको हेल्प कर सकते हैं। एंड अगर कोई रिपीटेडली फेल करता है एकेडमिक्स में या रिलेशनल एरियाज में, उसमें भी उसका नतीजा ये हो सकता है कि वो अपने आप को हार्म करे या सुइसाइडल अटेम्प्ट करे। सो एज अ टीचर योर टास्क इज टू नोटिस द चेंजेस। आप टीचर हो के कैसे बता सकते हो, क्योंकि ये मुमकिन नहीं होता है कि हर बच्चे का मतलब डिटेल्स आपके पास मौजूद हो 24 घंटे। सो यू कैन वॉच देम बिहेव, एनी चेंजेस इन देयर बिहेवियर।
अगर बच्चा पहले तो हंसमुख था, अब क्यों कम बोलता है, कम हंसता है, ऐसे क्यों चुप चुप रहता है, ये सब बिहेवियरल चेंजेस एज अ टीचर यू कैन नोटिस एंड यू कैन रिपोर्ट। हर स्कूल में काउंसलर्स होते हैं, सो काउंसलर के पास भेज सकते हो। हम बाद में इसके नेक्स्ट 3 डेज में जो कोर्स है उसमें हैंडलिंग टेक्निक्स भी पढ़ेंगे, काउंसलिंग टेक्निक्स पढ़ेंगे। बट आई वुड एडवाइज, अगर कोई सीरियस केस है तो लेट द एक्सपर्ट हैंडल, क्योंकि आप तो टीचर होके कितना टाइम दे सकते हो हर बच्चे को। सो यू जस्ट नोटिस द बिहेवियरल चेंजेस and refer them to the appropriate authorities or to the expert who is going to handle them। आप उनको ये चेंजेस बताने की जरूरत होती है। ठीक है, am I clear? Violence Excuse me, ma'am. yes आपने जो बताया भी काउंसलर के पास भेजना बच्चे को, जी, तो एक हमारे यहाँ प्रॉब्लम आया था, काउंसलर के पास भेजने के बाद तो वो प्रॉब्लम और बढ़ गई। क्यों? उसको ऐसा लगा कि मतलब और उसकी ये बात और सब जगह पता चल गई है, तो वो और ज्यादा प्रॉब्लम करने लगा, और ज्यादा अपने आप को हार्म पहुंचाने लगा। अच्छा, मतलब काउंसलर कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। but we always advise the experts should be handling जो अच्छा, ये जो बच्चों को भेजते हैं, आप क्या बोल के भेजते हैं? क्योंकि ये इसमें जो हम भी अपने क्लिनिक में जो देखते हैं, फर्स्ट सेंटेंस उनको बोलते हैं कि whatever happens in this room is very private and secret। ये एक बात हम अगर बात करते हैं तो सिक्रेसी और प्राइवेसी मेंटेन करने की बात करते हैं। ऐसे बोल के भेजे तो उनका ट्रस्ट बढ़ेगा। हाँ मैडम, घर में तो वो पॉसिबल है, लेकिन स्कूल में नहीं हो पाता। एक्चुअली काउंसलर के पास जब बच्चा जाएगा, हाँ तो हाँ, वो या क्लास हाउस में जाएगा या हाउस हाउस में जाएगा, जहां भी जाएगा वो पता, अदर बच्चों को पता चलना ही है, या तो वो क्लास से एब्सेंट है या हाउस से है या अदर कोई एक्टिविटी से है। हाँ तो हाँ, वो उसके बाकी टीचर्स को नहीं पता चलता, लेकिन वो क्लासमेट्स को या अदर लोगों को पता चल जाता है, तो उससे तो बच्चा राइट और नर्वस फील करने लग जाता है। राइट राइट। पेरेंट के पास ही हम भेजते हैं उसको, या फिर पेरेंट के थ्रू काउंसलिंग करवाते हैं, वो ज्यादा बेटर है। पेरेंट के थ्रू कराना तो बेस्ट है फिर, लेकिन इसीलिए हम ये पैरेलल प्रॉब्लम्स जो है, बुलिंग इसीलिए बोले कि बाकी सब बच्चे देख के उसका मजाक ना उड़ाए, है ना। तो ओवरनाइट तो चेंज नहीं आएगा, बट वी कैन चेंज द वे वी आर हैंडलिंग। सो बुलिंग करने के लिए कौन कौन उसको बुली किया कि वो काउंसलर के पास गया, फ्रॉम दैट एस्पेक्ट वी कैन एड्रेस द इश्यू। नहीं तो पेरेंट के थ्रू करना तो सबसे अच्छा है, बिकॉज दे आर माइनर्स, बिलो 18 ईयर्स के हैं, तो माइनर्स हैं, तो उनका पेरेंटल अप्रूवल तो जरूरी होता है। तो दैट इज द बेस्ट वे, पेरेंट्स को इन्वॉल्व कराए तो। और उससे पता चलता है कि और एक बात था, एक बच्चे का मामू मामू जो है वो भी, उसको डिप्रेशन का प्रॉब्लम था। तो हमारे स्कूल के जो आए थे बच्चे को लेके, तो वो बहुत परेशान थे कि इसके माँ को कैसे बताएं। बाप तो मतलब बाप का मृत्यु हो गया था, तो मदर वाज द ओनली पर्सन हु वाज रिस्पॉन्सिबल। वो सोच सोच के बहुत डर डर के टीचर सारे उसके माँ को फोन करके बताया कि आपके बेटे ने ऐसे ट्राई किया है मरने का, ये अटेम्प्ट किया है। स्कूल का जो गाड़ी था किसी का, पेट्रोल निकाल के कैसे किस तरीके से आग लगाने की ट्राई कर रहा था। तो मदर वो सो कूल, वो बोले अरे इसका मामा भी तो पागल था ऐसे ही। हम्म। तो ये भी हो सकता है कि आपको पता नहीं होगा, लेकिन पेरेंट्स को पता होगा उसकी फैमिली में किस किस को ये प्रॉब्लम है करके, है ना। सो फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक मतलब इट रन्स इन फैमिलीज बोलते हैं हम, डिप्रेशन जो, ये हो सकता है कि उनको भी आइडिया हो कि इसका एक मतलब होने का चांसेस है मेंटल इलनेस। स्कूल में जितने बच्चे जाते हैं काउंसलर के पास, उसमें सीरियस केसेस भी जाते होंगे, आप जो भेजते हैं सीरियस केसेस ज्यादा जाते हैं या लाइट केसेस, जैसे कोई बदमाशी किया रोजमर्रा की जिंदगी का जैसे बदमाशी होता है, उसके लिए भी जाते हैं?
रेगुलर मैडम होता है काउंसलिंग बच्चों का, क्लास वाइज, हाउस वाइज, तो अच्छा उसी में आइडेंटिफाई कर पाते हैं काउंसलर लोग कौन बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम। अच्छा, लेकिन टीचर्स आइडेंटिफाई करके भेजे तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि हाँ उस हाँ, ऐसा भी हो सकता है। हाँ वो बोलते हैं काउंसलर लोग हाउस मास्टर्स को कि आप लोग भेजेंगे तो अच्छा है। हाँ, इनडायरेक्ट हम बच्चे को नहीं बताते, लेकिन काउंसलर को बता दे रहे हैं कि इस क्लास के इस हाउस के इस बच्चे को देखना है, वेरी गुड, क्योंकि आप लोगों उनका के क्लासरूम बिहेवियर चेक करके। हाँ, राइट राइट, क्योंकि आप लोगों का ज्यादा ऑब्जर्वेशन रहता है, क्योंकि एज अ टीचर यू ऑब्जर्व, एज अ हाउस मास्टर और हाउस मिस्ट्रेस आप लोग ऑब्जर्व करते हो, और हाँ, यस। का भी रोल आप संभालते हैं। वो तो घर जाते 24 घंटे आपके निगरानी में रहते हैं, तो आपका ऑब्जर्वेशन बहुत सही बैठता है। फिर वायलेंस जैसे वैंडलिज्म हो गया, डिस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल प्रॉपर्टी, आग लगा दिए कहीं, गैंग अटैक हो गया, बच्चे ग्रुप में जाके अटैक किए दूसरे ग्रुप के बच्चों को, ये भी देखा जाता है इस एज में। तो उसको भी हैंडल करने के लिए अगेन इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप जरूरी है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, सो दैट वो आपको आके पहले बताए कि हमको मन कर रहा है उनको जाके ठोकने के लिए, मारने के लिए, ना, बिफोर इम्प्लीमेंटिंग एक्चुअली, बस गुस्सा करके बोल देने। अगर इतना अच्छा बिहेवियर नहीं रहेगा बच्चों का और टीचर्स का, तो वो भी हाइड करेंगे जो भी प्लान करेंगे, कोई भी नहीं बताएगा। ऐसा भी होता है, कभी कभी बच्चे आके टीचर्स को बता देते हैं कि ये लोग ऐसे प्लान कर रहे हैं उसको मारने के लिए, इसको चिढ़ा रहे हैं, कभी कभी बोलते नहीं है। सो यू ट्राई टू बी द फ्रेंड इन दैट टीचर, where the children can go freely and talk about their issues and problems or about their emotions, क्योंकि इमोशंस अपना वो खुद से बोलने की जरूरत है। Then role of teachers, what would be the role you would be playing in the life of these youngsters, those who are going through emotional issues and behavioral issues and problems related to their academics and personal life? So उसमें constant interaction between the teacher and adolescent बहुत जरूरी है, जो रिड्यूस करता है प्रॉब्लम का सिवियरिटी को। इतना सीरियस प्रॉब्लम फिर नहीं होगा अगर आप कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वेरी क्लोजली यू आर इंटरेक्टिंग विद देम, ताकि हर बच्चा आपको अपना समझे और चैनलाइज द एनर्जी ऑफ द एडोलेसेंस इन अ प्रोडक्टिव वे। उनको जैसे कंपल्सरी बना दिया जाए कि हॉस्टल के बच्चे आज आएंगे, आज जरूर खेलेंगे ये गेम्स, सो इसी वजह से चैनलाइज नहीं होता है उनका एनर्जी, ये हार्मोन्स उनका रिलीज होता है, बट दे डोंट नो वेयर टू स्पेंड ऑल दैट एनर्जी, सो वो नेगेटिव वे में चला जाता है बदमाशी करने में। तो दैट कैन बी चैनलाइज्ड बाय मेकिंग सम रूल्स इन द गेम्स और इन द हॉस्टल टेरिटरी। तो वो अपना वो टीचर्स का इंटरेक्शन की वजह से वो उसको मान के चले, फिर उनका नेगेटिव बिहेवियर ज्यादा नहीं दिखेगा। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन ट्रेनिंग ये भी प्रोवाइड किया जा सकता है स्कूल्स में थ्रू द टीचर्स। और एक इश्यू है एडोलेसेंस में, अनहेल्दी रोमांटिक रिलेशनशिप। ये तो आपके स्कूल्स के हॉस्टल्स बॉयज या गर्ल्स के अलग से होते हैं, लेकिन बैठते हैं तो एक ही क्लासरूम में, है ना, या बॉयज स्कूल और गर्ल्स स्कूल अलग है, ये कोएड है? कोएड है, कोएड। कोएड है। तो हाँ, जैसे बताया कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उनका बहुत होता है बच्चों का, तो अनहेल्दी रोमांटिक रिलेशनशिप भी एक इश्यू, बहुत सीरियस इश्यू है इस एज के लिए, बिकॉज दे हैव देयर वर्चुअल आइडेंटिटीज एज वी वर डिस्कसिंग। तो यहाँ पे तो स्कूल में बात नहीं करेंगे, लेकिन सबके पास फोन होता है, जबकि फोन भी नहीं अलाउड है, लेकिन स्कूल के बच्चों के पास तो फोन मिलता है। आप लोगों ने देखा होगा स्कूल के बच्चे आपके हॉस्टल में उनके पास फोन रहता है, पेरेंट्स भी फाइट करके बोलते हैं कि नहीं हमको जानना है इसीलिए हमने फोन दिया है, होता है ऐसे? यस मैम, यस मैडम होता है।
इसमें होते हैं, लेकिन बीच बीच में जाके हाउस से जब्त भी किए जाते हैं। अच्छा, लेकिन ये हाँ हाँ, ये फोन में जो ये यूज करते हैं उस पे कोई पाबंदी अगर लगा दे तो उनका वायलेंस बिहेवियर में बढ़ जाता है और बिहेव करते हैं, गुस्सा करते हैं। नहीं तो फिर पेरेंट्स भी मतलब आके इन्वॉल्व हो जाते हैं कभी कभी। ऐसे भी देखा जाता है कि उनको कितना सपोर्ट मिलता है फ्रॉम अ रोमांटिक रिलेशनशिप, क्योंकि उनको लगता है कि उनका फोन चला गया तो उनका पार्टनर जो है, उनका लवर या जो वो इमेजिन करते हैं वो भी चला गया, क्योंकि उनका वर्चुअल आइडेंटिटी से वो इंटरेक्ट करते थे, है ना। वो तो स्कूल का बच्चा है, यस मैम। आपने देखा नहीं है? एक बच्चे ने अपना आईडी खोला था, एज दिया था 22, और क्या करता है, इंजीनियरिंग करता है ये सब करके। मतलब ही वाज एक्चुअली हैविंग अ वर्चुअल रिलेशनशिप विद अ ग्रोन अप गर्ल। सो अनहेल्दी रोमांटिक रिलेशनशिप है जो उसमें they will have no result in having a relationship, rather it will bring more sadness to the child. हाँ, इसमें जैसे चिढ़ाने लगते हैं, नहीं तो स्कूल में जैसे फ्रेंड्स चिढ़ाने लगते हैं कि तेरा तो उसके उस लड़की के साथ अच्छा पटेगा, ऐसे ऐसे बोल के उनको सीरियस करा देते हैं। फिर उनको प्रॉब्लम होता है इन देयर इंटरपर्सनल स्किल्स, बात नहीं कर पाते हैं किसी भी लड़की से या किसी भी लड़के से, बिकॉज दे हैव बीन चीटेड बाय देयर फ्रेंड्स। हाँ, मजाक मजाक में बोलते बोलते कभी किसी का ज्यादा हार्म भी हो जाता है। Then there is this adolescent delinquent behavior. जुवेनाइल बोलते हैं उनको, जो those who are in conflict with the legal system. तो ये जो डेलिंक्वेंट्स है, जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स जो है, उनको मतलब वैंडलिज्म करते हैं या बदमाशी करके मारना, मारपीट करना, नहीं तो पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना, ये सब एक्टिविटीज भी पाया जाता है इन बच्चों में। फॉर हैंडलिंग सच साइकोसोशल प्रॉब्लम्स कुछ कुछ माइक्रो स्किल्स है। वो क्या है? ऑब्जर्वेशन, एक्टिव लिसनिंग, जैसे बोलती थी मैं पहले बोले थे, एक्टिव लिसनिंग बहुत हेल्प करता है। प्रोवाइडिंग फीडबैक, डिस्क्लोजर स्किल्स एंड रिफ्यूजल स्किल्स, ये सब है स्किल्स, माइक्रो स्किल्स, जो आप यूज कर सकते हो साइकोसोशल प्रॉब्लम में बच्चों का हैंडल करने के लिए। ये स्किल्स बस थोड़ा सा है, ये करके विल एंड टुडेस कोर्स। आज का क्लास फिर बाद में बंद करेंगे इन स्किल्स के बाद देख के। ऑब्जर्वेशन एक स्किल है जिसके थ्रू आप ये साइकोसोशल प्रॉब्लम्स है कि नहीं जान सकते हो। जैसे हमने देखा कि बच्चों के बिहेवियर में चेंज आना, कोई बहुत ही चुप चुप रहता है, नहीं तो कोई अपना ग्रुप छोड़ के दूसरे ग्रुप के बच्चों से जाके मिलने लगा है, अपने ग्रुप के बच्चों को छोड़ के, नहीं तो कभी कभी जाके सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर भी दिखाते हैं। बहुत सारे चेंजेस इन बच्चों में पाया जा सकता है। So you will get to know about all these behavioral changes only when you observe them quite closely. So close observation of their behavior is very important. As a teacher you can do that, so that आप जो भेजेंगे उसको काउंसलर के पास तो ये डिटेल्स के साथ भी भेज सकते हैं, जो डिटेल्स कोई और नहीं दे सकता, क्योंकि आपने तो एज अ हाउस मास्टर या हाउस मिस्ट्रेस अच्छे से ऑब्जर्व किया है, देखा है बच्चा पहले कैसा था, बेसलाइन ऑब्जर्वेशन एक होता है, फिर बाद में ये कैसे ऑब्जर्व आपने किया, क्या क्या चेंजेस आए, क्या हो सकता है। विथ योर फीडबैक यू कैन गिव। So feedback is also important. What feedback you are giving about the child? Providing feedback में आएगा वो। There is active listening skills. जैसे बोले कि you have to be really involved in the conversation. आप अगर बात कर रहा है, कोई अपना दुखड़ा बता रहे, उसी वक्त आप अगर किसी तरफ देख के आपका नजर कहीं और चला गया, मतलब बाकी बच्चे खेल रहे हैं, प्लेग्राउंड की तरफ देख लिया, सडनली वो चुप हो जाता है। फिर उसको लगता है कि नहीं नहीं मेरी बात सुनते नहीं है, बस ऐसे ही हाँ हाँ बोल रहे हैं सर, शायद सर या मैडम जो भी। तो हाउ एक्टिवली यू आर इन्वॉल्व और एंगेज्ड इन द डिस्कशन विद द चाइल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक्टिव लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन प्रोवाइडिंग फीडबैक, these are the micro skills we are discussing which will help in elevating the psychosocial problems of the adolescents. Providing feedback,
फीडबैक कैसे, मतलब कौन देगा, जिसको वो खुद बच्चे बहुत मानते हैं, वो है टीचर। टीचर से बढ़कर भी है, क्योंकि हाउस मास्टर हाउस मिस्ट्रेस पेरेंट का रोल भी वो संभालते हैं। तो उनकी अगर कोई फीडबैक हो, उनका फीडबैक बहुत काम में आता है। आप अगर कोई पॉजिटिव बिहेवियर देखते हो तो आप उनको ज़रूर देना पॉजिटिव फीडबैक, ताकि वो मेंटेन करें। आपने देखा होगा, कोई अगर बच्चा खेल में अच्छा नहीं है या पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तो अगर अच्छा करता है तो आप अगर बोल दें कि अरे वाह आपने तो इतना इस बार इतना अच्छा किया, तो उसको मतलब वो मेंटेन करने की कोशिश करेगा और ज़्यादा उसको पॉजिटिव बिहेवियर दिखाने में आसानी होगी। वैसे ही नेगेटिव फीडबैक से रिफ्रेन रहना। यू शुड नॉट गिव नेगेटिव फीडबैक्स टू द चाइल्ड, क्योंकि उसको लगता है फिर, जैसे आपको आप बोले अभी कि काउंसलर के पास भेज दिए तो उनको लगता है कि अब तो सबको पता चल गया। सो उसको नेगेटिव फीडबैक को नेगेटिव इमेज सोच के अपना वो इरिपेरेबल डैमेज हो गया सोचते हैं फिर। So feedback is very important. What kind of feedback you are giving, and be careful about the way you frame your sentences while giving the feedback to the counselor or to other teachers about a child, because they think बच्चे के लिए बहुत ही बड़ा मायने रखता है। आपने कुछ मतलब ऐसे ही कैजुअली बोल दिया होगा, लेकिन बच्चे के ऊपर असर पड़ सकता है। इसलिए डिस्क्लोजर स्किल्स, एक सेल्फ डिस्क्लोजर स्किल होता है, जैसे अपने बारे में कितना बताएं बच्चे को, ताकि वो आपको ट्रस्ट करे कि ये भी सर या मैडम मेरी बात समझ सकते हैं। वो है डिस्क्लोजर स्किल। अगर आपको सुनना है, एक्टिव लिसनिंग हम बात किए, एक्टिवली आप सुन रहे हो बच्चे को। अगर आपको लगे कि बच्चा डर रहा है कुछ बोलने में, एंड आप खुद you have gone through similar situations, you can disclose your situation to the child so that the child will feel comfortable. उसको भी आसान रहेगा, नहीं नहीं सर या मिस समझेंगे मेरी प्रॉब्लम को, क्योंकि उनका भी ऐसे ही हुआ था। या किसी और के बारे में अगर आप एग्जांपल दे रहे हो, तो सेल्फ डिस्क्लोजर स्किल कितना होना चाहिए, कितना अपने बारे में। ये नहीं कि बच्चा ने शुरू नहीं किया अपना प्रॉब्लम, आप अपने बारे में बताना शुरू करते और खत्म ही नहीं हुआ। ऐसे होने से वो इंटरेस्ट लूज करेगा। So self-disclosure is important, but how much should be disclosed is also important. You should be aware about the importance of your life situation, and if it has any similarity with the student's situation, then only you should disclose about the situation. Otherwise, it won't make the child comfortable. ठीक है? And और एक है refusal skill. जो रिफ्यूजल स्किल के बारे में एग्जाम्पल भी दिया है इस बुक में, इफ यू वांट टू सी दैट। समटाइम्स प्योर प्रेशर की वजह से वो बच्चे बहुत बिगड़ जाते हैं। द काइंड ऑफ ग्रुप दे बिलोंग टू दैट विल इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर। सो उसमें उनको कैसे मना करना है उनको सिखाते हैं। तो उनको आप ये बोल सकते हो कि नहीं मुझे अभी नहीं जाना है, मुझे होमवर्क खत्म करना है, नहीं तो मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं, या इग्नोर कर देंगे प्रेशर को, ब्लेम कर देना किसी टीचर्स या पेरेंट्स मुझे गुस्सा करेंगे, नहीं तो मजाक मजाक में ही अवॉइड कर दे ये फ्रेंड्स को, अगर उनको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं तो। So this is all about the ways adolescent is developing psychologically, socially, emotionally, and physical development also, how it happens, and what are the ways a teacher can help in observing the changes in the behavior of the student, and to what extent we can help. इतना हो गया हमारा the development aspect में। एक ये छोटा सा जो है, I'll just introduce the concept of moral development, then we'll continue with it. When we talk about moral development, actually, moral development is development about being right and wrong, or what is right and what is wrong, they are learning.
उनको सिखाते हैं कि क्या रॉन्ग है, रॉन्ग बिहेवियर क्या है और राइट बिहेवियर क्या है, या राइट वे ऑफ थिंकिंग क्या है। इस सिलसिले में एक है हाइंस डिलेमा। हाइंस डिलेमा करके एक स्टोरी है, कैसे ये सब एक्सपेरिमेंट करते हैं कि सबका रेस्पॉन्स कैसे मिलता है, उसी के ऊपर एक ये स्टोरी। आई विल टेल यू दिस स्टोरी काइंड ऑफ थिंग बिकॉज दिस इज द एक्सपेरिमेंट दैट हाइंस डिड टू गेट द मॉरल बिहेवियर रेस्पॉन्सेस फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स। सो एक हाइंस करके एक आदमी था जिसकी बीवी को एक बहुत ही बुरा बीमारी हुई थी। सो बीमार बीवी को बचाने के लिए ही नीडेड मनी। सो उनके शहर में एक ही दुकान था, देयर वाज ओनली वन शॉप व्हिच वाज सेलिंग द पर्टिकुलर ड्रग और पर्टिकुलर मेडिसिन व्हिच वाज वेरी एक्सपेंसिव। सो उस एक्सपेंसिव मेडिसिन को खरीदने के लिए हाइंस के पास पैसा नहीं था। So to get that money, he had to borrow money from others. But in spite of that, he could not collect the money to get the medicine. So what he did, he broke open the shopkeeper, because the shopkeeper that was procuring the drug was also making a huge profit because he was procuring the medicine at $200 or something, and he was selling it for $2,000. So इतना profit करने के लिए वो अनएथिकल काम कर रहा था। सो ये सोच के हाइंस ने क्या किया, उसका दुकान तोड़ के he took that medicine for his wife and his wife was saved. This is the story, and the participants in the experiment were asked actually हाइंस का behavior एनालाइज करके बताओ। तो कैसे किसी ने रेस्पॉन्ड किया, किसी ने कहा कि अच्छा हुआ दुकानदार तो इतना वो प्रॉफिट करता था, तो उसका एक लेके अगर जान बच जाती है तो कोई बुरी बात नहीं है। किसी ने ये कहा बिकॉज देयर वाज नो राइट और रॉन्ग बिहेवियर दैट वाज डिफाइंड, सो पीपल थॉट डिफरेंटली अबाउट द सेम सिचुएशन। सो कनेक्टिंग टू दैट स्टोरी, द मॉरल थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय लॉरेंस कोलबर्ग। वो बाकी कल हम करेंगे, आज 7 बजने को है। आई डोंट थिंक यू विल हैव द पेशेंस टू again study few theories. So we'll study about the moral development theories tomorrow. This is the story only which started with the experiment. Is that okay? This is enough for today. Thank you, madam. Thank you all for being patient. Any questions or anything that you want to discuss? Minute hai. No questions. So I'll assume that you will go through the chapter that we finished today.